خدا میرا خدا میرا خدا ہے وہ میرا خدا ہے. السلام علیکم. تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تب بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. دیکھیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو آیات جو اتری تھی، اقرأ بسمک ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کا مطلب یہ ہوا اے نبی اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا ہے. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم اور رحیم. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم مسلمانوں کے نہیں بلکہ عالم اسلام کو نہیں بلکہ سبھی عالم کو رحمت اللہ علیہ کی طرف سے علم سیکھنے کا حکم دیا ہے. علم سیکھنا اور سکھانا نبیوں کی وراثت ہے، بہت بڑا کام ہے، یاد رکھیے. ہم کیا سمجھتے ہیں سکھانے والا کیا تو ہے، سیکھنے والا کیسا نہیں ہے، بلکہ میں علم کی بہت بڑی دولت ہے. سبھی کچھ دولت چرائی جا سکتی ہے لیکن علم کی دولت کوئی بھی چرا نہیں سکتا، اور علم بانٹنے سے بڑھتا رہتا ہے. تو لیجئے اور ایک حمد بارک اللہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. جویا صفیہ سدرا جویا چاؤس الفیہ سلیدار وہ یہاں پر آئیں اور آپ کے سامنے حمد بارک اللہ پیش کریں. اے منا اور ایک مائک ہے کہ ارباز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے صدقے میں آقا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی ابو سہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرورگی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج دو. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ ہم کو دینا ضروری ہے. آج کے ماحول کے اندر جتنا ہم علم سے تعلق رکھیں گے، علم سے جوڑ رکھیں گے، موبائل کو دور رکھیں گے، تبھی ہم ہماری قوم کو سدھار سکتے ہیں. ورنہ موبائل میں ہم سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں. اس بات کا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. تو لیجیے اس کے بعد نعت کلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. نبی جی کی محفل سجا لیجئے گا، مقدر کو اپنے جگہ لیجئے گا. نبی جی کی محفل سجا لیجئے گا،
मुकद्दर को अपने जगह लीजिएगा। अगर कोई पूछे शान मोहम्मद तो कुरान उठा के दिखा दीजिएगा, तो कुरान उठा के दिखा दीजिएगा। तो लीजिए नाते कलाम पेश करने के लिए आपके सामने यहाँ पर मैं नाम पेश कर रहा हूँ। अरशद यहाँ आए और नाते कलाम आपके सामने पेश करें। बहुत छोटा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा ये। अस्सलामु अलैकुम। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस मेरी जिसके वसीले से मिली है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस मेरी जिसके वसीले से मिली है। वो हाशिमी माँ की, वो हाशिमी माँ की मदनी उलूर नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रुसूल है। मखदूम मुरव्वी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रुसूल है। मखदूम मुरव्वी है, वही वाली कुल है। इस पर नजर, इस पर नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वश्शम्स ज़ुहा चेहरे अनवरों की झलक है। वल्लैल सजाए हुए हज़रत की लचक है। वश्शम्स ज़ुहा चेहरे अनवरों की झलक है। वल्लैल सजाए हुए हज़रत की लचक है। आलम को दिया, आलम को दिया जिसके वसीले से मिली है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसे व रफअना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिसे व रफअना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात के जिस ज़ात के कुरान में भी ज़िक्र जली है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो ज़ात के जो साहिब लौला कलमा है। वो साहिब रफ़ो रफ़ो जब महराज हुआ है। वो ज़ात के वो खिज़रा में इमामत, खिज़रा में इमामत जिस नबियों की मिली है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम। बहुत जबरदस्त अंदाज में इस बच्चे ने नाते कलाम पेश की है। ऐसा लग रहा था कि और भी ये बच्चा कलाम सुनाता जाए। मौलाना सादिक साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हाफिज साहब और साथ साथ मौलाना इब्राहिम साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। उनका हम शाहबी गुजारगढ़ मस्जिद और मदरसे की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जब मोहम्मद का नाम आता है, रहमतों का पैगाम आता है, थोड़ा सा मैं अशार पेश करता हूँ, कोई इजाजत?
यानी हमारे यहाँ पे जो खास खुसूसी मेहमान सदर हैं, जो तकरीर करने वालों को आने में अभी काफ़ी वक्त है, इसके पहले हमको इस प्रोग्राम को अंजाम देना है और इन बच्चों की तारीफ भी करनी है। जब मोहम्मद का नाम आता है रहमतों का पयाम आता है, जब मोहम्मद का नाम आता है रहमतों का पयाम आता है, लब हमारे दरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं। तो लीजिए इसके बाद नाते कलाम पेश करने के लिए मैं दावत सुखन देता हूँ। बुशरा, आयशा, साइमा और सालेह, ये बच्चे यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और नाते कलाम आपके सामने पेश करेंगे। नहीं गुजरात की
बहुत खूब। मैं शुक्रगुजार हूँ ख़वातीन हज़रात माँ बहनों का, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। देखिए, आपका मुस्तकबिल आपके बच्चे हैं, उनकी तरफ आप जितनी तवज्जो देंगे उतना आपका खानदान आगे बढ़ता रहेगा। एक फर्द एक इल्म पढ़ता है तो सिर्फ वो अकेले को ही सिखाता है, अकेला ही पढ़ता है, लेकिन जब घर की एक बेटी पढ़ती है तो सारे खानदान को पढ़ाती है। तो बेटी जब पढ़ती है तो पूरे खानदान को पढ़ाती है। इतना ही बल्कि आगे आने वाली नस्लों के अंदर जो अच्छे अच्छे अल्लाह ताला उसको जो है दर्जात बुलंद अता फरमाता है। तो इसलिए बीवी फातिमा का नाम आयशा रज़ी अल्लाह ताला का नाम आता है। ऐसे किरदार बनाने की कोशिश हम औरतें करें। पकाना खाना उठना बैठना सब तो चला हुआ है, इसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर, थोड़ा सा दूर बाजू में रखकर अपने बच्चों की मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो दो। एक बच्ची जब बाहर निकलती है तो अकेले नहीं, पूरा खानदान बाहर निकलता है। और आजकल का दौर ऐसा है, बच्ची जब बाहर जाती है तो माँ बाप घबराते हैं कि मेरी बच्ची वापस आती या नहीं आती। दौर खतरनाक। अपने बच्चों को बुर्के में हिजाब अदब के साथ इस्लामी तौर तरीके से दायरे में रहकर काम करने की हुक्म दीजिए। चाहे पढ़ने का मामला हो, चाहे इल्म हासिल करने का मामला हो, कहीं दीनदारी का मामला हो, कभी दुनियादारी का मामला हो, इस बात का ख्याल रखें। हमारे पर बहुत बड़ा फर्ज का काम है। हमारे घर वाले तो कमाने के लिए निकल पड़ते हैं, वो अपने इसकी तरफ तवज्जो उतनी देते नहीं, लेकिन ज्यादा देने का काम माँ का होता है। और माँ की दर्शगा जो है बच्चे की, माँ की गोद है वो दर्शगा होती है। जरूरी है हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देते रहें। चलो खैर, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, मेरे कमली वाले आका का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में, हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। तो अगली नाते कलाम पेश करने के लिए मैं दावत सुखन देता हूँ। अल्फिया और अलीशा वो यहाँ पर आए और नाते कलाम आपके सामने पेश कर। कमाल को जो नीचे देखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिना देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना
बहुत खूब। इस मदरसे के ताल्लुक से एक बात मैं बताता चलूँ। मैं अभी यहाँ पर इब्राहिम व्यापारी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाए। इब्राहिम व्यापारी साहब पेशवान भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, और हमारे अब्दुल अजीज इमाम लिटोरे साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा, उनका भी मैं खैर मकदम का इस्तकबाल करता हूँ। इस मदरसे के ताल्लुक से आपको बताता चलो, ये मदरसे की शुरुआत इसी साल हो चुकी है, जिसमें 60 लड़के और 40 लड़कियां पढ़ते हैं, जिसमें बच्चे कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिए हैं, अलहम भी पढ़ना शुरू कर दिए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से तरतीब दी जा रही है। इब्राहिम व्यापारी साहब स्टेज पर आइए। मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ यूसुफ साहब को और उनके साथियों को, और हमारे नदाफ हाफिज साहब भी हैं, सादिक हाफिज साहब भी हैं, बहुत से लोग जो उनका साथ देते रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे तुम्हारे हरदिल अजीज रहनुमा अली पेशवान साहब, जिनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो खैर आगे बढ़ते चले जाते हैं, और एक नाट्य कलाम आपके सामने पेश करने की दावत सुखन देता हूँ। ओवेस, जुनेद, साद, हुजैफा वो यहाँ पर आए, नाट्य कलाम आपके सामने पेश करें। बैठ के जब तक देगा तो बाद में से ज्यादा भी तो लगेगा। आवाज मत करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा, प्यारा नबी हमारा, ईमान की रोशनी से दिल में दिया उजाला, जन्नत की राह दिखाई, चौपाटियाँ दिखाया, बंदों को जब बुलाया, खुदा के दर पर न कभी हुआ बदली, खाई है शौक सर पर बेवंद की नवाज़ी, बाना बदल जंतर दिखा चुका था, कच्चा मकाम तेरा, अल्लाह का दुलारा, प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा, प्यारा नबी हमारा। चलो इनाम लो। हाँ कौन सा वो लगा उससे ये डिस्टर्ब हो रहा। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। इसी के साथ नाट्य कलाम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। आगे तकरीर का सिलसिला शुरू होगा। हमारे इस्लाम के अंदर बुनियादी चीजों की मालूमात होना बहुत जरूरी है। जैसे फर्ज कितने हैं, सुन्नतें कितने हैं, नमाज कितने हैं, वजू के फराइज कितने हैं, ये सारी चीजें, फरिश्ते कितने हैं, अल्लाह के खास मुकर्रर रसूल कौन कौन हैं, इस बात का तज़किरा हमारे बच्चों को होना जरूरी है। कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल पूछा गया था। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने एक इंजीनियर साहब को सवाल किया, जिन्होंने 12 लाख जीता था। सवालों के जवाब देते देते 12 लाख जीता उसने। 12 लाख जीतने के बाद एक सवाल ऐसा पूछा कि बताइए इनमें से कौन नबी नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से कौन नबी नहीं है। एक बड़ा स्कॉलर 12 लाख जीतने वाला
मुसलमान और एकदम टैलेंट, उनके सामने सवाल रखा गया। ईसा, मूसा, मोहम्मद और जिब्राइल, ये 4 जो ऑप्शन रखे गए। तो वो सवाल देखकर हैरान परेशान हुआ, उसको पता ही नहीं था इसके ताल्लुक से। अमिताभ बच्चन पूछने लगे, क्या आप ट्वीट करना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं ट्वीट करना चाहता हूं, क्योंकि इस सवाल का जवाब अगर मैं गलत दूंगा तो 12 लाख से 6 लाख पर आ जाऊंगा। एक बड़ा स्पॉइलर, देखिए सुनने की बात है, 12 लाख जीता हुआ है, ये सवाल को अगर मैं गलत जवाब दूंगा तो मैं 6 लाख पर आऊंगा। तो उसने कहा कि सर मैं ये तुम्हारा सिलसिला ट्वीट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो अमिताभ बच्चन ताज्जुब हो गए, मुसलमान होने के बावजूद एक मामूली सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। गैर मुस्लिम, अमिताभ बच्चन को जवाब मालूम है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते उसको जवाब मालूम नहीं है। तो आखिर में अमिताभ बच्चन ने उसको सवाल किया कि बता, तुम जाते जाते ये तो बताओ कि तुम इसका जवाब क्या देना चाहते थे, इसका जवाब तुम्हारे दिल में क्या था? तो उसने जवाब दिया, ईसा अलैहिस्सलाम। बताइए सही है क्या गलत है? गलत है। ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। एक्चुअली 4 ऑप्शन में आखिर में जो नबी नहीं है वो जिब्राइल फरिश्ते हैं। इतना नॉलेज उसको नहीं था, तो इसलिए चाहिए कि हम अपने बच्चों को बुनियादी तालीम दे दें। बुनियादी चीजों की जरूरत, चीजों की अब हम जितना उनको तालीम देंगे उतनी बहुत जरूरी बातें जाते जाते मैंने कहा आप लोगों से। खैर चलिए तकरीर का सिलसिला यहाँ पर शुरू करते हैं। तकरीर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तकरीर का उन्वान है माँ बाप की खिदमत। इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। करते रहो माँ बाप की खिदमत, इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ बाप को खुश रखो, उनकी खिदमत करो, उनकी बात मानो, जो काम करने को कहे खुशी से करो, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, उनसे अदब से बात करो, किसी बात पर जिद ना करो, खफा होकर जोर जोर से ना बोलो। याद रखो कि नसीहत है, याद रखो कि नसीहत है, फर्ज माँ बाप की इताअत है, उनको करो तुम खुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, माँ बाप का दर्जा कितना बुलंद है, माँ की कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो लीजिए अगली तकरीर पेश करने की मैं दावत सुखन देता हूँ। नमाज की अहमियत, मेराज गुरु शेख नमाज की अहमियत के बारे में आपके सामने बात रखी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है वो है नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दिन का सुतून है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज शैतान का मुंह काला कर देती है, नमाज जन्नत की कुंजी है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है वो है नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दिन का सुतून है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज शैतान का मुंह काला कर देती है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज जन्नत की कुंजी है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तर्जुमा कयामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज। अगर वो अच्छी और पूरी निकल आई तो बाकी अमाल भी पूरे उतर आएंगे। अगर वो अच्छी और पूरी ना निकल आई तो इंसान खसारे में हो गए। आप सब मुअज्जज़ सामाईन, आप सल्लम का जब आखिरी वक्त था वो कहते थे अस्सलात अस्सलात अस्सलात, उम्मती उम्मती, ए मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, चाहे जान भी चली जाए लेकिन नमाज ना छोड़ना। मुअज्जज़ सामाईन, आप सल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दुआ है अल्लाह ताला से हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं इस शेर पर अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। गूंगी हो गई कुछ ज़बा कहते कहते, गूंगी हो गई कुछ ज़बा कहते कहते, खींच खिंचा गई मैं खुद तुमसा कहते कहते, खींच खिंचा गई मैं खुद तुमसा कहते कहते। तौफीक ना हुई मुझे एक वक्त नमाज की, तौफीक ना हुई मुझे एक वक्त नमाज की, और चुप हो गया मौजी नज़ा कहते कहते, और चुप हो गया मौजी नज़ा कहते कहते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनाम अल्लाह ताला के सामने जो है नमाज बहुत बुलंद दर्जा रखती है और हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज बहुत कुछ है। अब इसके बाद मैं दावत सुफन देता हूँ ईमान के ताल्लुक से आपके सामने बात रखेंगे। ये तकरीरों का सिलसिला चल रहा है, ये सामने बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, खामोश बैठ जाए बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नतुन नईम। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उनके लिए नेमतों के बागात होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गवाही दे कि अल्लाह ताला सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो अल्लाह ताला उस पर तन्नों के आग को हराम कर देंगे। मुसलमानों के लिए बुनियादी हदीस पर पूरे दिन की इबादत करी हुई है। जिसका अकीदा सही और मजबूत होगा उसका अमल भी सही और मजबूत होगा। लिहाजा अकीदे सही करे, दिल के यकीन को मजबूत बनाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको अपना अकीदा दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे नाते कलाम हम्द और तकरीरें पेश की जा रही हैं। अब इस वुजू के ताल्लुक से जो है बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं, वुजू के क्या क्या फर्ज है, फराइज है वगैरह वगैरह। माज नूरुद्दीन जावलगेकर, आयान तांबोली, मुजीब तांबोली, ये तीनों यहाँ पर आए। माज नूरुद्दीन जावलगेकर, आयान तांबोली, मुजीब तांबोली, उर्दू के ताल्लुक से। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के 4 फराइज। नंबर 1, पेशानी के वालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक और एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसाज करना। नंबर 4, दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजू के 13 सुन्नतें। नंबर 1, नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, पहले 3 बार दोनों हाथ घुटने तक धोना। नंबर 4, मिसवाक करना। नंबर 5, पहले 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6, 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 7, दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 8, हाथ पैर उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 9, हर उज़्व को 3 बार धोना। नंबर 10, एक बार तमाम सर का मसाज करना।
यानी बिगाव हाथ सर पर फिरना। नंबर 11 दोनों कानों का मसा करना। नंबर 12 तरकीब से वजू करना। नंबर 13 एक उज़्व सुखने से पहले दूसरे उज़्व को धोना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वजू तोड़ने वाली 8 चीजें। नंबर 1 पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से और कोई चीज निकलना। नंबर 2 रीढ़ यानी पीछे से हवा निकलना। नंबर 3 बदन के किसी हिस्से से खून या पिपका निकलना। नंबर 4 मुंह भरकर कहें यानी उल्टी करना। नंबर 5 लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। नंबर 6 बदन बीमारी और किसी वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7 मजनू यानी दीवाना हो जाना। नंबर 8 नमाज में खिलखिलाकर हंसना। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी हुसैन तांबुले यहाँ पर आए और एक दूसरे से बातचीत के जरिए मुकालमा आपके सामने पेश किया जा रहा है। बिल्कुल गड़बड़ मत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मैं मदरसा जा रहा हूँ। मदरसा क्या चीज है? मदरसा उसे कहते हैं जहाँ कुरान व हदीस की तालीम दी जाती है और दीन सिखाया जाता है। जिंदगी गुजरने का सलीका भी सिखाया जाता है। फराइज और सुन्नत नफिल वाजिबात तमाम से आफियत सिखाए जाते हैं। अरे भाई इतने आसान चीज के लिए भी क्या मदरसे की जरूरत? सुन्नत और फराइज घर बैठ के भी याद कर सकते हैं। नहीं भाई, उस्ताद की निगरानी में तरबियत होती है। ठीक, अगर तुम इतना मुंह चढ़ाकर बात कर रहे हो तो मुझे इतना सुना दो कि गुस्ल के फराइज कितने हैं और गुस्ल की दुआ क्या है। अरे भाई इतने आसान बात पूछते हो। मैंने हमारे बूढ़ों से गुस्ल की दुआ और फराइज याद कर लेते। लो तुम भी याद कर लो, तुम्हारे मौलाना को भी याद करा दो। गुस्ल के फराइज 3 है। नंबर 1 साबुनदानी। नंबर 2 गर्म पानी। नंबर 3 पूरे जिस्म पर पानी। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी कह रहे हो। और गुस्ल की दुआ क्या है? अरे भाई इतने आसान बात पूछते हो। क्या तुम्हारे हाफिज साहब को गुस्ल की दुआ भी याद नहीं है? हमारे बूढ़ों ने बताया था, अंत गुस्ल मंत गुस्ल 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 गुसारिया पानी में से डूब के निकला मेरा बाप। एक दुआ और एक गुस्ल अंडा दरिया का ठंडा पानी। मेरे भाई जरा होश में हो। ये गुस्ल के फराइज और ना गुस्ल की दुआ है, बल्कि हमारे उस्ताद ने हमें गुस्ल के फराइज सिखाए हैं। देखो आप भी याद कर लो। गुस्ल में 3 फराइज है। नंबर 1 गरारा करना। नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि बदन का एक बाल भी सुखाना रहे। और गुस्ल की दुआ भी सुन लो। नवायतु अक्तसिलु मिन गुस्लिन तारतिन लिल बदन लिरफिल पाक। तुमने तो मेरे आंखें खोल दी। बचपन से हमारे बूढ़ों के बात पर अमल कर रहा था। मुझे समझ आ गया कि मैं कितने पानी में हूँ। इंशाअल्लाह इरादा करता हूँ और नियत करता हूँ मैं उलमाए किराम और हाफिज साहब और इमाम साहब की सोबत में रहूंगा और अपने आप को मस्जिद का आदी बनाऊंगा। चिल्ला 4 महीने जमात में जाकर तमाम दीन की बात सीखकर उसका फायदा उठाऊंगा ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल सके। ठीक है, चलता हूँ। अपने मस्जिद की जमात कब जाने वाली है? 15 शाबान को जाएंगी। बैग तैयार रखो। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात कही है। अभी तक हम इतने बड़े हुए हैं, उर्दू की नीयत नहीं आती है, गुस्ल की नीयत नहीं आती है। वो सीखना बहुत जरूरी, याद रखिए। और हम बड़े हुए हैं करके शर्म ना नहीं है कि हमको सीखना है। आप यूट्यूब के ऊपर आप दीनी तालीम के हिसाब से कितनी बातें निकालेंगे, उसमें आपको वहाँ पर मालूमात मिलती है। उसके बाद मुकालमा पेश करने के लिए आ रहे हैं जकी टीन वाला आयान निटोरे।
लेफ्टे वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोबाइल रखिए, हमको आपसे कुछ बात करना है। हाँ बोलो, क्या बात? क्या यार भाई, हम हमेशा देखते हैं कि आप हमेशा मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, ऐसे कैसे होगा? आप अपना फ्यूचर बर्बाद वक्त जाया कर रहे हैं। इतना मोबाइल में गेम खेलने से आपकी सेहत भी बर्बाद हो रही है और आखिरत भी खराब हो रही है। इससे अच्छा आप अपना नाम मकतब में क्यों नहीं लिखा रहे? मकतब में क्या सीखने को मिलेगा? मकतब में बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी, जैसे कुरान पाक की तिलावत सिखाई जाएगी, दुआ याद कराई जाएगी, हदीसें याद कराई जाएगी और संडे आपको प्रोग्राम के लिए भी बुलाया जाएगा। इससे आपकी तकरीर भी ठीक होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी अच्छा रहेगा। इसका क्या काम? यही तो असल है, यही तो आखिरत में पूछी जाने वाली चीजें हैं। यह सब तो दुनिया में ही रह जाएगा। हमको इतना आता है, तुम जो पूछेंगे हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, हम पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। ठीक है, पूछो। फरिश्तों की तादाद कितनी है? तुम्हारे 100 से भी ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, जो नमाज पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आदमी। अच्छा तो यही बता दो, जो अजान देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो हाफिज ही कहते हैं। अच्छा ये बताओ, कुरान कैसे पढ़ा जाता है? मुंह से। और कैसे? अच्छा ये बताओ, कुरान में कितने पारे हैं? कुरान में इतने पारे हैं कि मुसलमान पढ़ते नहीं, सिर्फ सजा कर रखते हैं। अच्छा ये बताओ, रोजा किस महीने में रखा जाता है? सब सवाल जो हमें जो आप भी पूछ दीजिए। बिल्कुल पूछो। मैंने अपने स्कूल के बहुत से दोस्तों से पूछा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था। ठीक है, आप पूछिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस सलाह से किस नाम जाना जाता है? आमुल फिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा ही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बुलंद दूरी कितने दिन में सफर किया? 9 दिन में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में कितने दिन तक रहे? 3 दिन तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात कितने साल की उम्र में हुई? 63 साल की उम्र में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी मुकम्मल सूरह नाजिल हुई? सूरह फातिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के किस खानदान ताल्लुक था? बनु हाशिम। जिस पर मेराज का सफर कराया वो कौन सी सवारी थी? बुराक। मेराज का वाक़या कितने साल की उम्र में आया? 51 साल 9 महीने की उम्र में पेश आया। मेराज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हजरत जिब्राइल अमीन। अरे वाह वाह, आप तो दीन की बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। अब मैं भी आपके साथ मकतब में पढ़ने चलूंगा। अल्लाह आपको और आपको कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुखन देता हूँ कुरान पाक की तिलावत करने के लिए। अब्दुल समद बराकम स्टेज पर तशरीफ लाए और कुरान पाक हाफिज साहब को एक नमूने के तौर पर आपके सामने सुनाया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. मैं नाट्य कलाम पेश करने के लिए दावत सुखद देता हूँ। कुछ अशार जो पेश करें। अरशद यहाँ पर क्या नाम तेरा? अरशद आइए कुछ अशार पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस लरी जिसके वसीले से मिली है, वो हाशमी बाकी बदनी उल्लू रबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खातम रुसुल है, मखदूम मुरव्वी है वही वाली अकुल है। इस पर नजर सारे जमाने की लगी है, तो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो शम्स हुआ चेहरा अनवर की झलक है, वल्लैल सजाए तुए हज़रत की लचक है। आलम को दिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरा लको सदरको मंसूब हदीस व रफअना लको ज़िक्रको। जिस ज़ात के कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो ज़ात के जो साहिब लौला कलमा है, वो साहिब रफ जब महराज हुआ है। हिजरा में इमामत जिस नबी योगी मिली है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम मोअज़्ज़िज़, हमारे तुम्हारे हज़रत अज़ीज़ रूहानी पेशवा ईशा का अजीम और हिंदुस्तान का मशहूर मदरसा जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक़ल क़ुव्वत उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। उनको मैं ये बताता चलूँ, इस मदरसे में कुल मिलाकर 100 तादाद है बच्चों की, 7 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। जो मदरसे में इसी साल मदरसा शुरू किया गया है, और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे हीरो को आपने हमारे सामने रखा हुआ है। बहुत खुशी की बात है। एक हाफिज होना उनके माँ बाप के लिए, उनके रिश्तेदार के लिए नहीं, बल्कि सारे जितने भी लोग आजू बाजू में रखे उन सब के लिए फख्र की बात होती है। अल्लाह ताला उनके बदौलत जो है हर बलाओं को दूर करता है। हमारे सदर साहब और उनसे साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज के मौजूद हस्ती हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब विशाखी का गुलपोशी गुल हकीकत नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल करें। हारून भाई
पहले फेटा बांध देंगे, बस थोड़ा सब्र कीजिए। इस गुलपुष्प के बाद मौलाना साहब का बयान होगा, उसके बाद में आजान होगी, उसके बाद नमाज होगी। खाने का इंतजाम किया गया है, सभी हजरात ख्वातीन हजरात खाना खाकर जाना है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये बहुत बड़ी कामयाब मजलिस है। मौलाना साहब के लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। ये हुनर ये सादगी अपनेपन की मूरत नहीं देखी, ये हुनर ये सादगी ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। दुनिया में लाखों किरदार देखे हैं मगर, दुनिया में लाखों किरदार देखे हैं मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। इसके बाद अकलगढ़ के तमाम उलमाओं का यहाँ पर इस्तकबाल किया जाता है। मैं हमारे मस्जिद के पेश इमाम अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे अकलगढ़ के आए सभी तमाम सादिक हफीज साहब, आप भी थोड़ा साथ दीजिए। उनको भी गुनाह की का नजराना पेश करके इस्तकबाल किया जाता है। बहुत से मौजूद हस्तियां यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बहुत काबिल तारीफ है, दीनी समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यह हमारे दीन के सुतून है। इनको जितना बढ़ावा देंगे, इनकी जितनी हिम्मत देंगे, अल्लाह ताला हमको भी कामयाब अता फरमाएगा। मैं आज के सदर और मुकर्रर खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने शागिर्द यूसुफ हाफिज साहब का इस्तकबाल करें। ये लाजमी ये चीज, आपके हाथों से उनका इस्तकबाल होना ये उनके नसीब की बात है। और जैसे हम प्रोग्राम की तरतीब दे रहे थे तो बहुत खुशी के साथ आपका नाम उन्होंने लिया कि हमारे उस्ताद को यहाँ पर मदद करेंगे और उनके बात को हम सुनेंगे। दस्ते मासूम को लहू कलम देता है, नौ निहालों को अंदाज तकल्लुम देता है। दस्ते मासूम को लहू कलम देता है, नौ निहालों को अंदाज तकल्लुम देता है। रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह घर घर, डूब जाता है तो सितारों को जन्म देता है, डूब जाता है तो सितारों को जन्म देता है। सब ये ट्रॉफी जो इनामत जो है आपके तकसीम करने हैं। बैन के बाद देखिए, कुरान पाक के हिसाब से जो इम्तिहान ली गई है उसमें 3 नंबरात निकाले गए हैं, जिसमें 3 नंबर पर हैं सईद यूसुफ सैयद। सईद यूसुफ सैयद फौरन आ जाए, काफी वक्त बढ़ता जा रहा है।